Hello, dear UPSC EPFO aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, General English is a very important component of this exam, and this year there is going to be a common exam for APFC and and EOAO exam. So, guys, we need to be practicing phrasal verbs rigorously. In last lecture also I have covered phrasal verbs and complex preposition. Today also I wanted to discuss a few more phrasal verbs with you so that we can practice them more and we can learn them better. So what kind of questions we might face and how to tackle such questions, we'll discuss that in the lecture today, and we'll practice 15 MCQs with the for based on phrasal verbs. So don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel, guys. And guys, if you're looking for a one-stop solution to prepare for your EPFO exam, now our courses are the best solution that you can get. So guys, what you need to do is, the link is also given in the description of the video, but I'll tell you just a simple way. Just go to your browser and type edutab.in. As you type edutab.in, and you will be redirected to our homepage, and on the front you will see all our courses available to you. So the second tab is UPSC EPFO courses. Click on this and you will see all our courses available to you. So this is a UPSC APFC EOAO live crash course which is already going on. Recorded crash course which is available to you. Now this is, I think, this started on 30th of October. तो अभी बहुत time नहीं हुआ है. You can enroll in this and you can find all the classes, attend all the classes live. Then there is test series if you want to practice questions. Then there is a course for special subject for accountancy, statistics, social security, IR and labor laws, computer awareness, auditing. So all these are special subjects. So there's a special course for this. This is a one-stop solution for all your needs. Master course, everything including special subject, test series, live classes, everything is included in this course. So this is what you are looking for, and you can also have a 10-hour trial course where you can see how we impart lectures in our courses. And guys, we are offering flat 65% discount on our courses. The coupon code is capital festival 65. So come join us, streamline your preparation and make your journey fruitful and beneficial for yourself. All right, guys, let's first of all, let me give you the solution of the homework question that I told you last week. Yes, guys. So uh, the question was, you had to find the right phrasal verb, and you had to find that what preposition should be used with this. So the question is, she shuddered dash the dreadful sight. So shuddered at, shuddered on, shuddered over, or shuddered upon. So guys, the correct answer here is she shuddered. Uh, Shudder. Up, guys. We usually say she shuddered on or shuddered over. She shuddered at the dreadful sight. Shuddered matlab to shiver. So at is the correct answer here. Now let's start with few more questions for your phrasal verbs today, and let's see how we perform there. So you're given a blank and you have to find the right right phrasal verb to be used. So as I have just had a tooth dash, आई एम नॉट अलाउड टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग फॉर 3 hours, कि क्योंकि मैंने अभी अभी अपना दांत निकलवाया है इसलिए मैं 3 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता या कुछ नहीं पी सकता. तो एज आई हैव जस्ट हैड अ टूथ, रन आउट, ट्राइड ऑन, क्रॉस्ड आउट, टेकन आउट या ब्रोकन ऑफ. सो टेकन आउट क्योंकि दांत निकाला जाता है. सो एज आई हैव जस्ट हैड अ टूथ टेकन आउट, आई एम नॉट अलाउड टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग. रन आउट होता है कोई चीज़ खत्म हो जाना. ट्राइड ऑन कुछ पहन के ट्राई करना. क्रॉस्ड आउट किसी को काट मतलब कैंसिल कर देना. ब्रोकन ऑफ टूट के अलग हो जाना. लेकिन टेकन आउट या पुल आउट भी होता है गाइस. यहाँ पे टेकन आउट या पुल पुल आउट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो पुल आउट भी बोल सकते हैं दांत के लिए, या टेक आउट भी बोल सकते हैं. Next, guys, you need to dash your essay for spell check before you hand in your exam paper. Yes, guys, you need to hang out, you need to point out, you need to cut off, you need to go over, you need to go away. So, guys, you need to go over your essay. Go over का मतलब होता है revise और proof read. तो रिवाइज मतलब दोबारा उस पर नज़र मारना. तो यू नीड टू गो ओवर योर एसे फॉर स्पेल चेक. स्पेल चेक करने के लिए बिफोर यू हैंड इन योर एग्जाम. हैंग आउट होता है कहीं किसी के साथ घूमना. पॉइंट आउट किसी की तरफ इशारा करना. कट ऑफ काट के अलग कर देना. गिव अवे बांटना. लेकिन गो ओवर मतलब रिवाइज करना. सो गो ओवर इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट, इट इज नॉट ईजी फॉर मेनी सिविल सर्वेंट्स टू डैश ऑन देयर सैलरीज एज द इन्फ्लेशन रेट इज एक्सट्रीमली हाई. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर मेनी सिविल सर्वेंट्स टू डैश ऑन देयर सैलरीज, कि अपनी सैलरी पे काम नहीं चलता.
सिविल सर्वेंट्स का, तो गेट बाय, टर्न अप, वेयर आउट, रन ओवर या टेक अवे। द करेक्ट आंसर इज टू गेट बाय। गेट बाय होता है फाइनेंशियली अपना गुजारा चलाना। सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर मेनी सिविल सर्वेंट्स टू गेट बाय ऑन देयर सैलरीज, कि अपनी नौकरी से मतलब सैलरी से काम नहीं चलता क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। टर्न अप होता है कहीं पे जहाँ पे बुलाया जाता है वहाँ पे पहुँचना। वेयर आउट मतलब घिस घिस के पुराना हो जाना। रन ओवर किसी को कुचल के ऊपर से गुजर जाना। टेक अवे कोई खाना का टेक अवे होता है या किसी को लेके चले जाना, तो दैट्स टेक अवे। सो करेक्ट आंसर इज गेट बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यूड बेटर डैश योर सिगरेट एज इट इज डेंजरस टू स्मोक एट अ गैस स्टेशन। सो यूड बेटर, तुम्हें सिगरेट बुझा देनी चाहिए क्योंकि गैस स्टेशन पे डेंजरस होता है स्मोक करना। सो यूड बेटर होल्ड अप, पुल थ्रू, गेट थ्रू, हैंग अप और पुट आउट। क्या आना चाहिए गाइस? बुझा देना। सो यूड बेटर पुट आउट। पुट आउट होता है बुझाना, आग बुझाना। द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर। तो पुट आउट मतलब बुझाना। होल्ड अप होता है किसी को रोक के रखना। पुल थ्रू सक्सेस हो जाना। गेट थ्रू पहुंच जाना। हैंग अप कॉल काट देना। तो दैट्स पुट आउट इज द राइट चॉइस है। नेक्स्ट गाइस, जेन फाउंड इट हार्ड टू गेट अप फ्रॉम द बेड आफ्टर द अलार्म क्लॉक डैश एट 7 के, क्योंकि अलार्म क्लॉक 7 बजे बज गया था तो ही शी फाउंड इट हार्ड टू गेट अप फ्रॉम द बेड। तो व्हेन द अलार्म आफ्टर द अलार्म ब्रोक इन, टुक आउट, सेंट आउट, वेंट ऑफ या थ्रो अप। गाइस ब्रोक इन, ब्रेक इन होता है चोरी करने के लिए घुसना किसी के घर में। टेक आउट मतलब कोई चीज़ लेके जाना, या किसी स्नाइपर जब किसी को कोई टारगेट को किल करता है तो दैट इज टेकन आउट। सेंट आउट भेजना। वेंट ऑफ बजना और थ्रो अप वॉमिट करना। तो वेंट ऑफ होता है गाइस, एक तो बॉम्ब वेंट ऑफ होता है, गो ऑफ जिसको हम बोलते हैं, गो ऑफ या वेंट ऑफ। पास्ट में गो का वेंट हो गया, तो गो ऑफ अलार्म और बॉम्ब। तो द बॉम्ब वेंट ऑफ इन अ पब्लिक प्लेस, द अलार्म वेंट ऑफ एट 7। तो गो ऑफ या वेंट ऑफ होता है अलार्म और बॉम्ब के लिए। ठीक है। Next question, guys. There is an easy way to dash four species of wild cats living in this region by their tail patterns. There is an easy way to dash four species of wild cats. अच्छा, चार जो प्रजातियां हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब टेल अपार्ट। हाँ, C2, क्लियर अप, बैकअप या कॉल फॉर। टेल अपार्ट होता है उनमें डिफरेंस बताना। सो देर इज एन ईजी वे टू टेल अपार्ट फोर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स लिविंग इन दिस रीजन बाय देयर टेल पैटर्न। C2 मतलब कोई काम को देखना, क्लियर अप साफ करना, बैकअप किसी को बैकअप देना, सपोर्ट देना, कॉल फॉर बुलाना। बट यहाँ पे टेल अपार्ट मतलब उनमें डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करने को टेल अपार्ट करते हैं। Next, guys, I thought the party was going to be boring, but it dashed to be the most unforgettable evening of my life. So I thought the party was going to be boring, but it dashed to be, it turned out to be, it looked around, it passed away, it fell back या cut down। turned out मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो जाना। तो आई थॉट द पार्टी वॉज गोइंग टू बी बोरिंग बट इट टर्नड आउट टू बी द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ माई लाइफ। लुक अराउंड, इधर उधर कुछ ढूंढना, पास अवे गुजर जाना, फेल बैक ऑन, ठीक है, दोबारा से अपने पुराने कामों में लग जाना, कट डाउन किसी चीज़ को कम करना। बट टर्नड आउट मतलब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाना। चले guys, next question. I find it hard to dash with the other students in the Italian class as they have been attending the classes more regularly than I do. So I find it hard to fall through, call in with, do away with, catch up with या come up with. So guys, उनके बराबरी लेवल पे आना. So I find it hard to catch up with other students in the Italian class as they have been attending the classes more regularly than I do. Fall through मतलब कोई काम कोई काम का खराब हो जाना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। कोई प्रोजेक्ट खराब हो जाता है तो द प्रोजेक्ट फेल थ्रू। कॉल इन किसी को बुलाना, डू अवे, ठीक है, किसी का कोई का काम खत्म करना। कम अप मतलब टू कम अप विद अ न्यू आइडिया, मतलब कोई नई आइडिया लेके आना। बट टू कैच अप मतलब जब आप पीछे रह जाते हो तो दूसरों के साथ बराबरी तक पहुंचना। तो आई फाइंड इट हार्ड टू कैच अप। Next question, guys. The first National Food and Nutrition Survey was Dash in 1980 and the most recent one in 1992. So the first National Food and Nutrition Survey was carried out, dropped out, figured out, brought about या checked in. तो पहले जब आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हो उसको बोलते हैं कैरी आउट करना। सो द फर्स्ट नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सर्वे वाज कैरीड आउट इन 1980, द मोस्ट रिसेंट वन इन एंड द मोस्ट रिसेंट वन इन 1990। ड्रॉप आउट किसी को निकाल के ड्रॉप आउट कर देना, मतलब जैसे हम ड्रॉप आउट या ड्रॉप आउट करते थे किसी क्लास से। फिगर आउट कोई चीज़ को सॉल्व करना।
ब्रॉट अबाउट कोई चीज़ कोई बदलाव लेके आना, चेक इन मतलब किसी होटल में चेक इन करना, बट कैरी आउट इज टू एग्जीक्यूट, सो कैरीड आउट इन 1980. Next question, guys. The summit was earlier to be held in March, but was dashed due to the tsunami disaster that hit India, Sri Lanka, and the Maldives. तो postpone कर देना मेरे ख्याल से. The summit was earlier to be held in March, but was paid off, crossed out, put off, dropped in या turned down. तो put off होता है guys postpone कर देना. So turn down किसी के ऑफर को मना करना, drop in किसी से मिलने पहुंचना, cross out काट देना, paid off किसी को पैसे दे देना. But put off मतलब to postpone. So the summit was earlier to be held in March but was put off due to tsunami disaster that hit India, Sri Lanka and Maldives. Chale guys, next question. We had arranged to meet at 10 o'clock last Sunday, but John didn't dash on time. John didn't give in, look up, put out, turn up या find out. So turn up मतलब कहीं जगह पे टाइम से पहुंचना. So we had arranged to meet at 10 o'clock last Sunday, but John didn't turn up on time. ठीक है, given होता है हार मान जाना, look up कोई चीज़ को ढूंढना, put out मतलब बुझाना, find out मतलब पता चलना, लेकिन turn up मतलब कहीं पे पहुंचना. So we had arranged to meet at 10 o'clock last Sunday, but John didn't turn up on time. Next question, guys. Question number 12. I had better leave. I do not want to dash my welcome. कि मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा रुकूंगा तो तुम पे बोझ बन जाऊंगा. आई डोंट वांट टू गिव अप, गो ऑफ, रन डाउन, वेयर आउट या टेक इन. सो आई डोंट वांट टू रन डाउन माय वेलकम. वेयर आउट होता है गाइस थक जाना. टेक इन मतलब किसी को अपने पास रखना. गो ऑफ बॉम्ब का एक्सप्लोड होना. और गिव अप मतलब हार मान जाना. लेकिन रन डाउन मतलब किसी चीज़ को एक्सपायर कर देना. ठीक है, तो राइट गाइज, तो कोई चीज़ एक्सपायर हो जाना इज रन डाउन. तो आई बेटर लीव, आई डोंट वांट टू रन डाउन माय वेलकम. के भाई मैं अब तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता. आई डोंट वांट टू मतलब जैसे होता है ना, कोई कोई किसी के पास रुकने जाता है तो एक दिन दो दिन तक तो ठीक है, फिर तीसरे दिन चौथे दिन वो यूँ लगने जाता है यार कब जाएगा यार ये. तो वही होता है कि आई बेटर लीव कि मुझे अब चलना चाहिए. आई डोंट वांट टू रन डाउन माय वेलकम कि मैं अब अपना वेलकम को खराब नहीं करना चाहता. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. इट वॉज अ मिस्टेक दैट आई डेंट डैश द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट. कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले मैंने साइन करने से पहले मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरी गलती थी. तो इट वॉज अ मिस्टेक दैट आई डेंट लुक थ्रू, कॉल्ड आउट, कम बाय, गेट अप या कैच ऑन. लुक थ्रू किसी को ध्यान से पढ़ना. सो इट वॉज अ मिस्टेक दैट आई डेंट लुक थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट. कॉल आउट किसी को बाहर बुलाना. कम बाय मतलब किसी मतलब ऐसे ही मतलब जो रेगुलरली कम बाय, आई केम बाय समथिंग. ठीक है. गेट अप उठना. कैच ऑन किसी को वो करना पकड़ना मतलब किसी के बराबर पहुंचना. बट लुक थ्रू इज किसी को ध्यान से पढ़ना. तो इट वाज अ मिस्टेक दैट आई डिडंट लुक थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट. Next guys, John is a rich man because he dashed a lot of money last year. He went through, checked in, fell behind, came into या figured out. तो जॉन अमीर आदमी है क्योंकि कल पिछले साल उसको बहुत पैसे उसने कमा लिए थे या मिल गए थे उसको. तो गो थ्रू होता है गाइस पढ़ना कोई चीज़, चेक इन कहीं पे होटल में चेक इन करना, फॉल बिहाइंड पीछे रह जाना, फिगर आउट कोई चीज़ सॉल्व करना. लेकिन कम इन टू, ठीक है, तो जॉन इज अ रिच मैन बिकॉज ही केम इन टू अ लॉट ऑफ मनी. तो कम इन टू मतलब अचानक से उसको पैसे मिल गए. सो टू कम इन टू अ लॉट ऑफ मनी होता है मतलब अचानक से कुछ मिल जाना. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस. Liz decided to dash jogging as she needed to lose weight urgently. So Liz decided to go against, take up, run into, hand in and get at. तो guys कोई चीज़ स्टार्ट करना, कोई हैबिट स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? To take up. तो Liz decided to take up jogging as she needed to lose weight urgently. गो अगेंस्ट किसी के खिलाफ जाना, रन इनटू किसी से अचानक मिलना, हैंड इन अपने किसी डॉक्यूमेंट्स दे देना या अपना रेजिग्नेशन देना, हैंड इन. और गेट एट मतलब किसी बात पे पहुंचना. बट टेक अप मतलब कोई नई हैबिट शुरू करना. आई टुक अप साइकिलिंग रिसेंटली, मैंने अभी अभी साइकिलिंग शुरू की है, ऐसे बोलते हैं टेकअप को. ठीक है. चले गाइस, तो ये थे आपके आज के फ्रेजल वर्ब्स. आई होप इनसे आपको काफ़ी नए फ्रेजल वर्ब सीखने को मिले होंगे और ऐसे ही इनको सॉल्व कर करके पढ़ पढ़ के इनको हमें एग्ज़ाम में भी प्रिपेयर करना होता है. ठीक है. चले गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विश and I hope that you have learnt useful points, useful information about phrasal verbs. जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता जाता हूँ गाइस. आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, अपने ब्राउज़र पे जाके बस सर्च करो edutap,
edutap.in, जैसे आप सर्च करोगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको दूसरा ही टैब दिखेगा यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज का। इस पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये रहे आपके सारे ईपीएफओ के कोर्सेज। ये लाइव क्रैश कोर्स है जो अभी शुरू हुआ है 30 अक्टूबर को। रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स जो फर्स्ट बैच था वो रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है आपको, अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। टेस्ट सीरीज है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो। स्पेशल सब्जेक्ट के अलग से कोर्स है, अगर आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स पढ़ना है। लेकिन इससे बेटर गाइज आप 300 रुपये में, आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा में आपको मास्टर कोर्स से मिल रहा है, जहाँ पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है इसके अंदर। सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल कोर्स फॉर यू, एंड आई थिंक इस पर हम 65% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल फेस्टिवल 65। और आप यहाँ से फ्री 10 आवर ट्रायल कोर्स भी ले सकते हैं, या फिर आप नीचे हमारी आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस भी दिखेंगे, आप ये पहले डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम कैसे आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। अगर कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाएगा, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys, and happy learning to all of you.